Hello, everyone. This is Ishpriya Kaur. I'm convener of the Social Media Committee and member of the Political Affairs Committee of the India Greens Party. You're welcome to today's webinar. Eminent Gandhian social worker Ms. Radha Bhatt will talk on the topic Gandhi and Sustainable Development. Our party's founder Suresh Nautiyal will introduce the topic and Ms. Radha Bhatt ji when he moderates the session. Before going to the topic, let me tell in brief that the India Greens Party came into existence on 2nd July 2017. The party was formally founded on 18 November 2018 with the adoption of its constitution and formation of the National Executive, and under the leadership of senior journalist and environmentalist Mr. Suresh Nautiyal. The party was registered as a political party by the Election Commission of India on 18 July 2019. Today, the party has its footprints in nearly 30 states and union territories of the country and committees in more than a dozen states. The IGP has more than 1 lakh and 60,000 hits on its website. We request you to support us by filling the membership form of the party and by donating to the party. For both purposes, please visit www.indiagreensparty.org, or you can directly call the office secretary on the mobile number mentioned on the website. Thank you very much. Over to Mr. Nautiyal, the founder of the India Greens Party. Thank you, Priya, one of the youngest leaders of the India Greens Party. Namaskar to you all. Today is a day of remembrances. Today is the birth anniversary of Gandhiji, Mohandas Karamchand Gandhi, born on this day, 2nd of October in 1869 at Porbandar in Gujarat, India. Today is the United Nations International Day of Non-Violence, observed to commemorate the birth anniversary of Gandhiji, pioneer of India's independence and the philosophy of non-violence and austerity. Also today is the birth anniversary of our beloved Lal Bahadur Shastri, former Prime Minister of India. And in the context of Uttarakhand, where our party's national head office is situated, this day is very emotional. On this day in 1994, the Uttarakhand state movement agitationists were targeted by the state, the Uttar Pradesh government, and its police force. The fault of the agitationists was that they were marching to the national capital, Delhi, to demand a state of their dreams and aspirations. Due to this, the Uttarakhand people observe this day as a black day. Sorry, Gandhiji. Sorry, Shastriji. Now, under the Green Dialogue series today, eminent Gandhian social worker, Ms. Radha Bhatt, popularly known as Radha Behan or Radha Didi, will be talking on a burning topic, Gandhi and sustainability. Radha Didi will tell us where to go from here. As you know, the concept of sustainability became well known through the famous Brundtland report entitled Our Common Future, published in 1987. This report recognized that the natural resources were not inexhaustible, not infinite. It said the development process should be aimed at meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This thinking definitely brought paradigm shift in ecological science, humans essentially being in the center of the ecosystem functioning. This very idea of sustainability figures prominently in Gandhiji's teachings. He said, the world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. This very statement indicates his idea about sustainability. Gandhiji further said, what we do today is our future. This means we are bound to suffer if our lifestyles are not to be sustainable. Besides, Gandhiji said, we should not look upon the natural resources, water, air, land, as inheritance from our forefathers. Consider them to be the loan given by our next generation. This statement prompts us to know more from the doyen of Gandhian social workers, Radha Bhatt. She lives at Lakshmi Ashram in Kausani, Uttarakhand,
with several other committed social workers like Nima Vaishnav. Our distinguished speaker, Radha Didi, known affectionately as Radha Ben also, is the patron of the above mentioned Lakshmi Ashram. The ashram was founded for educating the girls by an associate of Gandhi, Salla Behan, who was born Catherine Mary Haleman on 5th of April 1901 in the United Kingdom and became disciple of Gandhi. Radha Didi has also been chairperson of the prestigious Gandhi Peace Foundation at New Delhi. Thank you, Radha Didi, for gracing this occasion. Over to you, Radha Didi. राधा दीदी जी आप बोलिए। धन्यवाद। आज इस अहिंसा दिवस यानी गांधी जी के जन्मदिन पर आप सबके पास आने का और आप सबको सुनने का और कुछ बातें अपनी बताने का मौका मिला है, तो मुझे इसके लिए आप सबको विशेष तौर पर सुरेश नौटियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। और मैं आशा करती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत ऐसी बात कहूँगी, इस तरह से कह सकूँगी। मेरा गला बहुत खराब है, अब तो इस उम्र में कुछ न कुछ खराब होता ही है शरीर में, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी बात कह पाऊँ ऐसी मैं कोशिश करूँगी। आज मेरे हिसाब से जो मुद्दा आपने उठाया है विकास का और खास तौर पर सतत विकास का, वो बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि हमने जो विकास की अवधारणा में जो गलती की है पूरे विश्व ने, हमने माने पूरे विश्व ने, उससे हम कहाँ पहुंच गए हैं और अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको इससे वापस नहीं पर इससे कहाँ जाना है, क्या करेंगे हम, कैसे इस दुनिया को भी जीवित रखेंगे और कैसे अपने मानव समाज को भी जीवित रख पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल, विशेष तौर पर विकास की अवधारणा कैसी है हमारी, उस पर निर्भर करता है। ऐसे तो आपकी जो इंडिया ग्रीन पार्टी है, ये इस तरह के मुद्दों को ले रही है, इसके लिए कुछ काम भी कर रही है और विशेष रूप से मैं जितना जानती हूँ आप कोशिश कर रहे हैं कि विश्व का जो पर्यावरण एकदम खराब सा हो गया है, या कहना चाहिए कि उजाड़ हो गया है, एक तरह से वीरान हो गया है, उसको कैसे अपने पूर्व स्थिति में ले आए, कैसे उसको जिंदा रखें, ऐसी कोशिश कर रही है। पर मुझे लगता है कि केवल पर्यावरण की बात नहीं है, पर्यावरण के साथ साथ पूरे समाज की बात है। पूरा समाज ग्रीन नहीं रहा। आप जिस ग्रीन की बात कर रहे हैं वो ग्रीन हमारा समाज नहीं रहा, हमारा समाज लाल हो गया। उसको ग्रीन होना था और लाल हो गया। लाल क्यों हो गया? क्योंकि वो जहां से शुरू से अंत तक रक्त रंजित हो गया है। आप देखिए, केवल युद्धों में ही रक्त बह रहा है ऐसा नहीं है, व्यापार में रक्त बह रहा है, व्यापार में किसी का खून चूसा जा रहा है। और अभी आप सारी व्यवस्थाओं को देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब जगह एक आम व्यक्ति का, हम कहेंगे गरीब व्यक्ति का, गरीब भी नहीं है, आम व्यक्ति है पर उसके पास मतलब असीमित धन नहीं है, ऐसे व्यक्ति का खून बुरी तरह से चूसा जा रहा है। और इसके लिए हमारे विकास की अवधारणा जो है वो ही जिम्मेवार है। इसलिए ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने ढूंढा जिसके
जिस पर चर्चा करने की बात है, और मैं आशा करती हूँ कि इस पर एक अच्छा संवाद होगा। हम बहुत पहले की बात है, मैं तो अब 90वें साल में जा रही हूँ, तो उस पहले के जमाने में जब ग्रामदान भूदान का आंदोलन चलता था, हम एक बहुत अच्छा नारा लगाते थे, बड़ा पावरफुल नारा था कि जल जंगल और जमीन ये हो जनता के अधीन। और एक दूसरा नारा भी था, वो था रोटी कपड़ा और मकान सबको मिले एक समान। तो मुझे लगता है इसमें जो आकांक्षा है इस समाज की, वो प्रकट होती है कि हम किस तरह की अर्थव्यवस्था में रहे और किस तरह का विकास हमारे सामने हो। उसी दिशा में जो मेरे अपने अनुभव हैं, कुछ थोड़ा आपको बताऊंगी। आज हम देखते हैं समाज तो एक तरह से ईर्ष्या को पनपा रहा है। ईर्ष्या माने कंपटीशन, बिना कंपटीशन कुछ हो ही नहीं सकता। शिक्षा है तो कंपटीशन, काम है तो कंपटीशन, और बाजार है तो कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है। ये आप सोचते हैं कि कंपटीशन के बाद लोगों का सौहार्द बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। सौहार्द की बात ही नहीं होगी, सौहार्द का रास्ता ही नहीं होगा। दूसरे को पछाड़ने का, दूसरे को गिराने का यही ध्यान होगा। और ये सारे खेल क्या हो रहे हैं? खेल तो आनंद के लिए हुआ करते थे, अब खेल भी ऐसे हो गए हैं, वो भी कंपटीशन में है। और लोगों को एक के बाद दूसरा धन कमाना है उससे, तो खेल क्या बन गया? ये सारा हमारा विकास हमको बिल्कुल मूल्यों से विपरीत ले गया है। जिन मूल्यों से हम लोग समाज में अच्छा वातावरण बना सकते थे, वो मूल्य धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि केवल साधनों की, केवल अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि हमको एक ऐसा समाज चाहिए जिस समाज में ये मूल्य पनप सकें, जो समाज को शांति और सौहार्द दे सकते हैं। और ये गांधी बताता है। गांधी को खूब अच्छी तरह अध्ययन करने की बात होती है। उनका दर्शन ऐसे दो चार सुनी सुनाई बातों से हम नहीं समझ सकते और ना उसकी गहराई में जा सकते हैं। उसके लिए हमको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और गांधी की केवल दर्शन को ही नहीं देखना है, गांधी दर्शन और आचरण दोनों का समन्वित रूप है। जो दर्शन है, जो विचार है, जो हमने समझा है, उसको जीवन में उतारने की बात है। तो इसलिए जो काफी दुनिया के देशों में मुझे बहुत सारे लोग मिले जो कहते हैं कि ये बात सही है, आज के समस्याओं को अगर हम किसी तरह उनका निराकरण करना चाहते हैं तो हमको गांधी के रास्ते पर चलना होगा, उसको समझना होगा। समझने की कोशिश करते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते, और आचरण में नहीं लाते तो क्या होगा कि हम सोचेंगे, हम सपना देखेंगे, हमारा ड्रीम होगा कि हम एक सही रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन हम निकलकर उसमें चल पाए, उसमें हम प्रगति कर पाए, आगे बढ़ पाए, ऐसा हमसे नहीं होगा। और गांधी की ये विशेषता है कि वो वही कहता है जो
उसके जीवन में वो जीवन में का उपयोग में लाता है। इसीलिए तो हिम्मत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कहता है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आपको जो सीखना है, जो मेरा संदेश लेना है, तो मेरे जीवन से। मैं सोचती हूँ कि इस बात को लोग नहीं पचा पा रहे हैं। वो लोग विचार को समझ जाते हैं। गांधी ने, जैसा आपने भी एक उदाहरण दिया, सुरेश नोटियाल जी ने, उन्होंने कहा कि there is enough for everybody's need, but nothing for anybody's greed. नीड और ग्रीड का फर्क गांधी ने किया, और मुझे लगता है कि ये सचमुच में मूल मंत्र है सतत विकास का। अगर हम अपनी अय्यासी को छोड़ें, सुविधा लोलुप नहीं बने, अगर हम हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी अवधारणा उस तरह से बने, हमारी विकास नीति भी उसी तरह से बने, तो तभी हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां की हमारे संसाधन, हमारी विरासतें जो हमको हमारे पूर्वजों ने दी हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सहेज के रखी हैं, वो आगे भी चलेंगी। हम उनको नष्ट नहीं करेंगे, इसी जीवन में उसको भोग नहीं कर लेंगे, बल्कि वो हमारे जीवन के साथ अगले जीवन और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ती रहेगी, और हमारी पीढ़ियां उसमें विकास करती रहेंगी। तो इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। ये अहिंसा की बात भी यही है। हिंसा केवल मनुष्य पर ही थोड़ी होती है, सारी सृष्टि पर होती है, सारी धरती पर होती है, सारी मिट्टी पर होती है, सारे जंगल जमीन पर होती है, सारे जीव जंतुओं पर होती है। तो अपना ये इस प्रकार का हमारा जीवन क्रम, ऐसी हमारी जीवन शैली अगर है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये समाज, ये सृष्टि, ये जीव जंतु सारे शांति से रहेंगे, आगे तक चलते रहेंगे, सतत चलते रहेंगे? हो नहीं सकता। तो इसलिए गांधी इसी बात को कहते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द दिया। उसको वो कहते थे स्वैच्छिक गरीबी। आप अपने जीवन को स्वैच्छिक रूप से गरीबी में रखिए, गरीबी के रूप में रहिए। गरीबी माने ऐसा कुछ नहीं था, वो एक तरह से वो सादगी से ज्यादा गहरा शब्द है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप दरिद्रता में रहेंगे, आप खाना पूरा नहीं खाएंगे, या आप वस्त्र के लिए तरसेंगे, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है आप स्वैच्छिक रूप से उपभोग की जो चरम है, उपभोग के लिए जो आज तो उपभोगवाद है, तो उपभोग के लिए जो कुछ उखाड़ पछाड़ है, उसमें नहीं जाकर बस अपने जीवन को स्वयं से एक शांत और सुस्थिर बनाने की कोशिश करेंगे, और जो इसी सुस्थिरता में ऐसी ही विकास नीति भी बनाएंगे। इसको समझने की पूरी जरूरत मुझे लगती है। हम अगर स्वैच्छिक गरीबी को समझ लेते हैं, और उसके अनुसार हम अगर समाज को विकास योजनाएं वगैरह देते हैं, और उन्हीं योजना बनाए, या गांधी का तो विचार किसी केंद्रित सरकार का नहीं है। गांधी की दृष्टि में
केवल आर्थिक विकास ही विकास नहीं है। अभी तक इन 7 दशकों में भारत का पूरा ध्यान केवल अर्थ पर है। विकास माने आर्थिक, आर्थिक विकास गांधी उसको नहीं मानता है। गांधी राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सब प्रकार के विकास की संभावना को विकास कहता है। और अगर वो संभावना बनती है तब गांधी की दृष्टि से समग्र विकास होता है। अब आप देखिए, राजनीतिक दृष्टि से भी गांधी जी कहते हैं कि सत्ता का केंद्र, सत्ता का आधार गांव होना चाहिए। उसको वो विलेज रिपब्लिक कहते हैं, जहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं निर्णय ले रही है, बल्कि सारी सामूहिकता, सारे सामूहिक नागरिक मिल करके तय कर रहे हैं, मिल के चला रहे हैं अपनी व्यवस्था को और अपने विकास को। अगर हम उस बात को लेते हैं तो लोगों को थोड़ा विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे होगा। लेकिन मैं महसूस करती हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता ही है। वो लोग ज्यादा सर्वसम्मत होते हैं। ये सर्वसम्मति की बात है, ये बहुमत की बात नहीं है। जहां बहुमत अल्पमत की बात होती है वहां संघर्ष सामने आता है। सर्वसम्मति में संघर्ष की बात नहीं आती है, धैर्य आता है कि हम रुक सकते हैं। अच्छा, किसी की सम्मति नहीं मिली, वो थोड़ा अभी सोच रहा है, विचार कर रहा है, चलो रुकेंगे उसके लिए। ऐसा होते हुए मैंने देखा है और मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है। तो गांधी सत्ता का केंद्र वहां गांव के अंदर गांव की सर्वसम्मत सरकार में रखना चाहते हैं, और गांव फिर क्षेत्रीय पूरे इलाके से, पूरे क्षेत्र से, एक प्रकार के क्षेत्र से लोग किस तरह से अपने कार्यों को या अपनी व्यवस्थाओं को बनाएंगे या उस तरह से चलाएंगे, ये भी उनके सामने है। उसको हम ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि वो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, जो हमारे समाज में जो आज की उठापटक है और आज का जो भ्रष्टाचार है, आज की जो झूठ है और आज की जो ईर्ष्या है, ये सारे अवगुण तिरोहित हो जाएंगे। इनके कारण हम देखते हैं कि विकास जिसको हम कहते हैं वो होता ही नहीं। किस विकास की बात कह रहे हैं हम? चरित्र शून्य है, भ्रष्टाचार चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, और हम कह रहे हैं कि विकास हो रहा है हमारा। नहीं, गांधी इस सब की चिंता करते हैं और उनका दर्शन ये सब बताता है। और दर्शन का जो आचरण है वो और अधिक प्रेरणा देता है कि हाँ, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो समग्रता है गांधी के दर्शन में और उनके आचरण में भी, उसको हमें अपने विकास की एक क्या कहना चाहिए, बुनियाद की शिला बनाना चाहिए। उससे 2 बातें होंगी। आज देखिए, देश में ऐसे भी हैं लोग, बहुत हैं, लाखों हजारों, मेरे ख्याल से क्या पता करोड़ों भी होंगे, हैं ही, मैं आंकड़े नहीं जानती, लेकिन जो क्या कर रहे हैं, उनके पास रहने का घर नहीं है, उनके पास दिन भर की दौड़ भाग जो है वो शाम की रोटी के लिए है केवल। उनके बच्चों को शिक्षा के मौके अभी भी नहीं प्राप्त हैं।
क्यों नहीं प्राप्त हैं, वो स्थितियां भी हैं। और ऐसा होने के साथ साथ हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अरबपति बन गए हैं। वो दुनिया के धनाढ्य सर्वोच्च धनाढ्य लोगों के ऊपर अपना नाम पेश कर रहे हैं या पेश हैं उनके नाम। तो ये जो कहना चाहिए, मैं तो इसको विभत्स कहती हूँ, विभत्स व्यवस्था है अर्थव्यवस्था। इसका एक ही उपाय है जो गांधी ने तो दिया था। उन्होंने कहा था कि कॉरपोरेट्स जो हैं वो ट्रस्टीशिप का विचार पर काम करें। और उन्होंने ये भी कहा था कि समाज से जो प्रसाद रूप आपको मिलता है तो वही आपको लेना है। आपको अपने महलों को खड़ा करना, मंजिल दर मंजिल खड़ी करते जाना, ये नहीं करना है। समाज एक समानता में आए और समानता में आएगा तो मेरा तो विश्वास है कि ये आतंकवाद भी उसी विषमता में पैदा हो रहा है, उसी खुंदक में, उसी चिढ़ में, उसी क्या कहना चाहिए, उसी कंपटीशन में। और ये भ्रष्टाचार भी इसीलिए होता है। तो देश समाज इस प्रकार के भ्रष्टाचार और आतंकवाद से भी मुक्त हो सकता है और यही सही विकास होगा। मैं सोचती हूँ विकास तो बहुत है, हमने बहुत विकास कर लिया कहते हैं, खास करके हमारे जननायक, हमारे राजनेता बहुत कहते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं जिनके पीछे उनको अपना दिन और रात खपाना पड़ रहा है वो आज भी होती हैं। आज भी आतंकवाद एक बड़ा सवाल है। आज भी भ्रष्टाचार के लिए कहां-कहां छापे मारे जाते हैं। क्या है ये? क्या विकसित समाज है ये? तो हमको गहराई से सोचना चाहिए कि कहीं इस मॉडल में, विकास के जिस मॉडल को हमने लिया है उसमें ही कहीं खोट है। उसमें जो चरम पर जाने के और अनंत उपभोगवाद है, कभी जो समाप्त नहीं होने वाला है, ऐसा उपभोग, आज ये है तो और आगे, वो है तो और मिल गया तो और आगे, इस तरह की जो हवस है, इस तरह की जो दौड़ है, वो मनुष्य को न तो शांति से रहने देगा, न आपस में मेल से रहने देगा। मेल का नाम कहना झूठी बात है, मेल नहीं है। और इस तरह से विकास उसके लिए पूरी तौर पर जिम्मेवार है। तो हमको दूसरे जो क्राइटेरिया हैं और दूसरी जो भी चीजें हैं वो तो हैं ही, लेकिन इन दो चार चीजों का तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मैं तो ग्रीन पार्टी से गुजारिश करूंगी कि वो इस प्रकार के विचारों को ज्यादा मंथन करे। मैं तो संक्षेप में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, तो उसका मंथन करे और मंथन करके अपने पार्टी के अंदर उस तरह की के विकास के लिए कोशिशें शुरू करे। तो अगर इस तरह की कोशिशें हर कोने से हो जाए, व्यक्तियों से हो जाए और विभिन्न संगठनों से भी हो, विभिन्न पार्टियों से भी हो। वैसे गांधी के जो मॉडल है उसमें कोई पार्टी नहीं है। दलगत राजनीति को गांधी ने बिल्कुल एकदम हटाया है। आपको मालूम है कि उन्होंने दलों के आधार के बहुमत पर बनने वाली संसद की बड़ी आलोचना की है और कठोर शब्दों में की है। उसको वो विकास और उन्नति का साधन नहीं मानते। और दूसरी बात यह है कि जब हम
जब हमारा देश आजाद होने लगा, आजाद हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि आपका जो काम था ना वो पूरा हो गया, आपका राजनीतिक काम पूरा हो गया, अब आप अपने राजनीतिक काम को विसर्जित कर दीजिए और इसके जितने कार्यकर्ता हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, नए हैं, पुराने हैं, वो सब के सब गांव में चले जाएं और गांव को खड़ा करें, क्योंकि वो उनका सपना ही वो स्वराज्य का था, उसको वो स्वराज्य कहते थे। ये अंग्रेजों के चले जाने पर जो हमको गद्दी मिल गई, उस गद्दी को वो स्वराज्य नहीं कहते थे। ठीक है, वो एक कदम था, वो कदम के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बाद असली में मकसद उस तरह के स्वराज्य का था। और वो स्वराज्य जब तक नहीं आता तब तक हम कह भी नहीं सकते कि ये देश विकसित है, क्योंकि जो मॉडल हमने बाहरी देशों से और विशेषतः पश्चिम से जो उपभोगवादी मॉडल लिया है, वो मॉडल ही समस्याओं की जड़ है। उस मॉडल के कारण ही हम आज तक, इतने सालों तक भी इस देश को एक शांत, सौहार्दपूर्ण नहीं बना पाए। और अब हम उसमें और थोड़ा जहर मिला रहे हैं, कहना चाहिए। क्या जहर है? अभी तो धर्म और संप्रदाय का जहर जुड़ गया है। तो ऐसे में जो स्थिति आज है, उसमें इस देश के विकास की बहुत बड़ी आशा नहीं बनती है। और गांधी के विचार में या दर्शन में और उनके आचरण में उसको कैसे करना, जीवन को किस तरह से उस शैली में डालना, ये गांधी ने किया, दोनों चीजें की। और उसको अगर हम लेते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ आगे बढ़ सकेंगे। और मेरी जो समझ है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा जैसे भी टूटे फूटे शब्दों में बताया है। अब मेरी आदत नहीं रह गई कि मैं व्यवस्थित रूप से भाषण करता बनी रहूं, भाषण होते नहीं, तो इसलिए हो सकता है कि मैंने केवल छुआ है, मैंने केवल इंगित किया है, दिशा दिखा दी है, लेकिन खोजना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। और अगर आप खोजेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें हमारी कितनी ही समस्याओं का पूरा निराकरण भरा हुआ है। गांधी का रास्ता इस तरह का रास्ता है। आखिर में अपने शत शत प्रणाम उस महान दार्शनिक कहना चाहिए और उस महान कार्यकर को, जो कार्य करते थे और कर्मठ थे, कर्मवीर को मैं अपने प्रणाम करती हूँ। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिन श्रोताओं ने सुना है उनको भी बहुत प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। आशा है आप लोग इसमें से कुछ तो छोटा मोटा, कुछ तो मतलब का, अर्थ का पा सकेंगे। धन्यवाद। दीदी प्रणाम, आप अभी बनी रहिए। मैं उन दर्शकों को थोड़ा आपने जो बोला उसको अंग्रेजी में कुछ टेम्पलेट्स में उनको बताना चाहता हूं, और इसके बाद आपसे हम कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, तो आप थोड़ा बनी रहिए। अच्छा। तो Radha Didi said the sustainable development is very crucial in modern times, but we defined development wrongly, not appropriately, and now we are trying to understand where to go from here, how to keep the humanity going on. And she also mentioned about the work of IGP, India Greens Party. She said the party is doing some work trying to rectify whatever wrong has been done, and how to bring environment and ecology to the original conditions. She said not only environment, society has also moved from green to, she said red, but she mean exploitation.
So in the name of development, education, common people, everything is suffering. The concept of development is responsible for all this. And she also talked about Gram Dan, Bhudan times when, they used to chant slogans like Jal Jangal Jameen, Ho Janta ke Adheen, Roti, Kapda aur Makan, Sabko Mile Ek Saman. So these slogans are basically about equality in society, equality, economic equality, and they talk about social justice. But she also regretted that the modern time is not like that. And society has been leading to competition. This is bad. Everywhere competition we can see. Compassion, empathy is not there in the modern times. And consumerism and money have overtaken everything else. They have overshadowed everything. And she said, the question is not about resources only. We need a society that provides peace and compassion. Of course, non-violence. And she also told us that Gandhian philosophy is very deep, and we need to understand it in the right context and perspectives. And philosophy and practice for Gandhi are not different. They are the two sides of the same coin. And Gandhi said, whatever he said, he also practiced that in his own life. And that is why he said, my life is my message. Gandhi also distinguished between need and greed. One example I gave already. And Radha Didi said, this distinction between need and greed is actually sustainability. The concept of development has to be based on this mantra. And she also related non-violence with the sustainability. And she talked about Swechik Garibi, that is voluntary poverty, or in other words, austerity, how to minimize consumption, how to minimize our needs. And if I refer to Thoreau, so he has written in length about austerity, how to lead a life with the minimum needs. And he also said that, the policy of development has to be in consonance with austerity and that voluntary poverty. And she said Gandhi was not in favor of central system of governance. The focus of the government is to develop economically only. This is not development. This is, and village should be center of power. Village republic of communities. This is possible, what Gandhiji said. And consensus has to be evolved. Majority or minority vote leads to competition, struggle. Corruption, competition, bad governance must go. There is no government if these things are there. And this is the crux, and this is the essence of Gandhi's philosophy. And it is very sad that even today, after so many decades of independence, people live in extreme poverty. They do not have 2 square meals a day, and there is no education. And on the other hand, there is a big race to be on the list on the top of the list of billionaires. This is vulgarity, she said. And she also quoted Gandhi, where he said, the corporates should work as per trusteeship and to build a class of society. And she also talked about extremism, how it is, taking, over the society. And this is no ideal society. And there is something wrong. And this is because of unending consumerism. There is no love, no compassion, no empathy. And she also said that Gandhi was not for any party. He was critical of the present electoral and parliamentary system. He advised the Congress, you are done with your work. Stop all this, go to the villages to build village republics. This was his idea about Swarajya.
The Western model is the very root cause of all problems, Radha Didi said. We have poisoned it with communalism. This is against Gandhiji's ideas, against his philosophy. So in the end, she said, I have just indicated, and you have to explore. You have to find the solutions. So over to the listeners. If you have any questions, please go ahead. विन जी आप पहले बोले. हाँ हाँ, तो गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं कि आज गांधी जी का जन्म का दिवस मना रहे हैं। और आज की दिन की सार्थकता यही है कि हम उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों और उनके जो दर्शन हैं इसको और गंभीरता से समझें। मैं इस अवसर पर हमारी आज की मेहमान राधा भट्ट जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मैं पार्टी को आज एक मार्गदर्शन दिया है, एक सिद्धांतों, चूंकि हमारी पार्टी के ही भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि गांधीवादी सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। खासकर अहिंसा की जो बात है वो हमारी पार्टी का मुख्य सिद्धांत है। इसी के साथ ही समानता इत्यादि जो सिद्धांत है वो गांधी जी के दर्शन से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। तो मैं आज के दिन में आपने जो हमारी पार्टी को एक संदेश दिया, जो हमारी पार्टी के सदस्यों को ये बहुत ही गहराई के साथ उस पर विचार कर पार्टी को आगे बढ़ाने में आपके जो उद्गार हैं ये हमें सहायक सिद्ध होंगे। मैं पुनः आपको मेरी शुभकामनाएं और आज के दिन के लिए आप सभी को बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। दीदी राजेंद्र मिन जी हमारी पार्टी के को प्रेसिडेंट हैं। हमारी पार्टी में दो अध्यक्ष होते हैं, एक महिला और एक दूसरे लिंग से। तो राजेंद्र जी दूसरी अध्यक्ष हमारी नजीमा है केरल प्रांत से। बॉम्बे से हम रूसी नरीमन जी को ले सकते हैं। हाँ, रूसी जी भी अनम्यूट है। रूसी जी भी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और बॉम्बे में है रूसी नरीमन। सबको नमस्कार। मेरा राधा जी आपको सुन के बहुत खुशी हुई और सुरेश नोटियाल जी आपका भी भाषण बहुत बढ़िया था साहब। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के नेता, आप सुन रहे हैं ना, मुझे आवाज आ रही है? जी हाँ जी सुन रहे हैं। आजकल के जो नेता लोग है वो गांधी जयंती के ऊपर तो कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो बोलते हैं गांधी जी के विचारों पे भाषण जो आज के नेता देते हैं, लेकिन खुद सर्वनाश करने पे तुले हुए हैं। बराबर के नहीं? समझ में आया। हाँ। और दूसरी बात, लोग बोलते थे आजादी के बाद, अभी भी बोल रहे लोग, आज भी बोल रहे लोग कि अंग्रेज लोग हमें लूट के चले गए। वो बात सही है, लूट के चले गए, लेकिन आज के नेता लोग क्या कर रहे हैं? वो भी लूट रहे हैं। उनके खून में बस गया है, उनके खून में नस के अंदर घुस गया है लूटने के लिए। बस पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। बिल्कुल बराबर ना? अभी ये देखिए ना, नेहरू और गांधी जी दोनों स्वतंत्रता के लिए लड़े थे ये सब, लेकिन नेहरू आगे बढ़ गया, गांधी जी वहीं रह गए। वैसे ही अभी केजरीवाल के गुरु कौन थे? वो तो वहीं रह गए, और केजरीवाल कहाँ चला गया? ऊपर आ गया एकदम। कैसे आ गया? सब नेता लोग आजकल हेरा फेरी करते हैं। और सुरेश नोटियाल जी ने, आपने भी कहा कि पैसे बनाने में इतने मजबूर हो गए। अभी क्या बोलूं मैं, अंबानी को देखो, अडानी को देखो, तो वो लोग अभी अडानी आगे निकल गया तो मुकेश अंबानी को दुख हो गया कि मेरे आगे कैसे निकल गया वो।
अपने ही देखते, पब्लिक का कोई देखता नहीं है। हम लोगों को हम लोग को कोई देखता ही नहीं, सुनता ही। ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं है, लेकिन गांधी जी के विचारों पे, गांधी जी बोल के गए, उनके आधारों पे हम चले तो दुनिया बदल जाएंगी। जरूर। थैंक यू सो मच। दीदी, थैंक यू। आप रोशी नरीमन जी की बात पर टिप्पणी अगर करना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला प्रश्न तैयार है। नहीं, अगला प्रश्न दीजिए। अगला प्रश्न रेहाना सिद्दीकी की तरफ से है। सर, आई एम ऑडिबल? Yes, yes, you are. या थैंक यू। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि गांधी जी की जो थॉट्स और आइडियोलॉजी है, अगर उसको आज अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो वर्ल्ड की काफी सारी प्रॉब्लम्स, आपको लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो सॉल्व हो जाएंगी, इंक्लूडिंग हमारे देश के साथ साथ दूसरे देशों को भी देखें अगर, तो वहां पे अगर हम लोग गांधी जी की थॉट्स और आइडिया कैसे वो हेल्प कर सकता है, अगर इस पे थोड़ा कुछ कहना चाहे मैम। ऐसे कर सकता है, उस समय की परिस्थितियां जो थी उसके अनुसार गांधी ने बोला। आपको शब्द को नहीं लेना है कि उन्होंने शब्द क्या बोला, आपको या हमको शब्द की जगह पर वो भाव, वो दिशा क्या है उसको समझना होगा। क्योंकि आज की परिस्थिति वैसे भिन्न है, उस समय की परिस्थिति से आज तो बदल गया है, मनुष्य का मानस भी बदल गया है, उसका आकांक्षाएं दूसरी हो गई हैं। लेकिन जिन आकांक्षाओं में वो बह रहा है उससे तो उसका भला नहीं ही होगा, ये उसको समझ लेना पड़ेगा। और फिर जिस तरह गांधी ने भी कभी कोई गलती भी की, कोई विचार भी गलत कहा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिर अपने को ठीक कर लिया है। उस भाव को हमें लेना होगा कि हमको कैसे ठीक करना है। और आज की परिस्थिति में, आज के ही स्थितियों में हम उनके विचार की कौन सी दिशा ले सकते हैं। तो दिशा से तो हम सही जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि हूबहू जो वो कह रहे थे वही हम कर लें, ये सही तरीका नहीं होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। और तरीका यही हो सकता है। इसलिए जो लोग विदेश के भी बहुत सारे लोगों से मेरी बातें हुई थी, वो लोग चिंतन तो करते हैं, कहते हैं कि हाँ, अभी हमको लगता है कि गांधी इज एप्रोप्रिएट फॉर एवरीथिंग टुडे, लेकिन एप्रोप्रिएट है ऐसा मान करके ही तो नहीं होगा। हमको अपनी स्थिति के अनुसार उसकी माकूलता को बैठाना पड़ेगा और उसके अनुसार कार्यक्रम बनाना होगा, उसके अनुसार हमारी नीति बनेगी, उसके अनुसार हमारा प्लान बनेगा। और दूसरी बात यह है कि वो लोग महसूस करते हैं कि हाँ, ऐसा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अब ऐसा हो गया, ये परेशानी हो गई, पानी सूख गया, जमीन जहरीली हो गई, ये सब उनको समझ में आता है। लेकिन उनको जो अय्यासी है, जो सुविधा लोलुपता है, सुविधा को पकड़ने की इच्छा है, वो नहीं छूटती है। अब ये केवल अमीर देशों की ही बात नहीं है, हमारा उत्तराखंड तो बहुत उस दृष्टि से कहाँ है, बहुत पीछे है। पीछे नहीं है, आगे है लेकिन है। तो इनको पहले कई किलोमीटर पैदल चल करके खूब हंसते खेलते लोग पहुंच जाते थे कहाँ के कहाँ। फिर अभी तो मोटर रोड बन गई तो बस जा रही है, तो कई गुनी तेज हो गई हमारी गति। लेकिन इससे भी संतोष नहीं हो रहा है हमको। हम आप कहते हैं कि रेलवे लाइन बनाओ, सड़क को 4 लाइन 6 लाइन बना दो, तो ये विवेक चाहिए हमको, ये विवेक होना चाहिए कि कहाँ पर हम रुक सकते हैं, कहाँ तक हमको जाना है, कहाँ जाके हम नुकसान करेंगे। कहा हुआ एक विचार यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी अगर अनुमति हो तो।
उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको कहा था कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो काबिल है, लेकिन हमारी बोलते हैं ना कि वो ग्रीड को, लालच को हमारे वो पूरा नहीं कर सकती। और हम कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों से आगे बढ़ चुके हैं। एक ग्रीड की भावना ही है जो हम लोग जो फैसिलिटीज वगैरह के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं इतना ज्यादा, और कहीं ना कहीं अपनी सेहत को भी हम लोगों ने इसीलिए नुकसान पहुंचाया है। उनका तो हमेशा ये रहा सादा सा आहार हो और वैसा ही विचार हो, सत्य विचार हो, ऐसा उनका कहना था। और एक चीज मैं एक ऐड करना चाहूंगी, लास्ट थिंग, कि मैं समझती हूँ कि अपने देश की आज की जो स्थिति है उसको उनके एक ही वचन से समझा जा सकता है कि उन्होंने कहा था कि मैं उस इंसान को धार्मिक मानता हूँ, मैं उस मनुष्य को धार्मिक मानता हूँ जो दूसरे मनुष्य की तकलीफ को समझता है, उसके दर्द को समझता है। तो यहाँ पे धर्म वाली लड़ाई तो मेरे ख्याल से होने की गुंजाइश नहीं रह जाती है अगर हम इस एक लाइन पर हम चले तो। ठीक है, पर आज हम उसी से तबाह कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली वो वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपको धन्यवाद। राधा दीदी 90 साल की हो गई हैं और हमारे लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण है उनका। वो जो आज बोल रही हैं कल वो हमारे काम आएगा, इसलिए आप जितने अधिक और अच्छे प्रश्न कर सकते हैं कीजिए। माइकल आप भी तो कुछ पूछिए। हाँ मौसी, so नमस्ते राधा जी, इट्स बिग ऑनर टू हैव यू विद अस। बहुत ही बड़ी बात है, मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि हमारे IGP प्लेटफॉर्म पे आप आए, हमारे लिए इट्स रियली अ बिग थिंग। और प्रैक्टिस ऑफ गांधीयन फिलॉसफी या उस पे चलना, ये इनफैक्ट इस पूरे इवेंट में भी मुझे दिखने को मिला कि हमसे गलतियां हुई, हमारी जो टेक्निकल इश्यूज रहे हैं, आप तब भी इतनी काम रही हैं। So I can actually see the Gandhian thing in your practice. You're completely, forgiving and adjusting, and that's very, very visible. And I'm getting to see it firsthand because ये एक किस्म का एक सिचुएशन होता है जहाँ पे अच्छे की जो है पेशेंस खत्म हो जाता है और बोलते हैं अच्छा हमसे नहीं हो पाएगा या रहने दो, and they give up, and or they get irritated and you're still stuck on, जबकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना। सो ये एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा था पहले। और आपसे एक आपका कोई ऐसा कोई मेमोरी है गांधी जी के बारे में दैट रियली टच्ड यू लॉट? हो सकता है ये सवाल आपको हजारों बार लोगों ने पूछा अभी तक, बट इज देयर समथिंग दैट you think you would share that you have not shared before that we would like, I mean, कि हम लोग उससे प्रेरित हो सके या कुछ हम सीख सके? थैंक यू। माइकल भाई, मैं तो कभी गांधी जी को नहीं मिली। मैं यहाँ हिमालय के पहाड़ों में थी जी। और गांधी तो यहाँ तो नहीं थे, आए थे एक बार वो कौसानी, परंतु तब मैं कौसानी में नहीं थी तो कहाँ देखती उनको मैं, इसलिए मुझे उनकी कोई ऐसी मेमोरी नहीं है। पर मैंने कितनी मेमोरी सुनी है। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कुछ भी आप उनके बारे में, एनीथिंग दैट यू नो। या मैं कौसानी से जुड़ी एक याद बताती हूँ। कौसानी जब वो आए थे तो एक गांव के व्यक्ति थोड़ा बूढ़े से थे, वो उनके लिए एक लाठी लेके आए। यहाँ हमारे यहाँ एक जंगल की एक लकड़ी है जिसकी लाठी बनती बहुत मजबूत होती है, तो उसकी लाठी बना के बहुत अच्छी तरह से उसको जलाना पड़ता है। फिर उस लकड़ी का नाम बता दीजिए दीदी। हाँ, घिंगारू। अच्छा, हाँ, घिंगारू। तो उसकी लाठी लाए और गांधी जी को दिया, प्यार से दिया, कहा आप इसको, ये मेरी ओर से आपको भेंट है। गांधी जी दूसरे दिन घूमने जाने लगे तो उन्होंने कहा वो मेरी लाठी कहाँ है, वो वृद्ध सज्जन जो लाए थे, लाओ कहाँ है। तो लोगों ने तो अरे लाठी है क्या है, उसको कहीं का कहीं डाल दिया होगा। अब फिर सब उनके साथी लोग जो थे कार्यकर्ता, वो भड़बड़ इधर उधर दौड़ने लगे, दौड़ करके जा रहे थे, कहाँ है लाठी, कहाँ है लाठी, कहाँ है लाठी। बापू ये दूसरी लाठी ले लीजिए, ये इसको ले जाइए। नहीं, मुझे वही लाठी चाहिए।
क्योंकि मैं एक लाठी को बर्बाद करूं, लाठी हम कितनी चीज बर्बाद करते हैं, पर गांधी एक लाठी को बर्बाद नहीं करता था। और फिर ये कहा उन्होंने, उस वृद्ध व्यक्ति के प्रेम का मैं अपमान नहीं कर सकता, वो कितने प्रेम से मेरे लिए लाए थे। और तब फिर लोगों ने बहुत भाग दौड़ की होगी, तो कहीं किसी कोने में पड़ी हुई मिल गई तो दे दी उनको, फिर वो उसको लेकर के घूमने को चले गए। ये एक ऐसी कहानी है जो उनका जो सिद्धांत है, उनका जो दर्शन है, उसको प्रकट करती है, लेकिन वो उनके आचरण को भी प्रकट करती है कि किसी को तो अरे बुढ़े जी आए थे, पता ही नहीं, याद ही नहीं रहेगी। गांधी को याद भी है और गांधी उसकी कद्र भी करते हैं और उसके प्रति, उसके प्रेम के प्रति भी बहुत एकदम वो है। तो बस यही है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड का सॉरी हाँ, हमारे विकास नीति की बुनियाद बननी चाहिए ये। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया ग्रीन्स पार्टी इसके ऊपर डेफिनेटली इसको करेगी, नो डाउट अबाउट इट। सुरेश जी है, हमें उनके साथ मिलकर बहुत हम डेलिब्रेट करेंगे और उसको अच्छी तरीके से पॉलिसीज में, अल्टीमेटली हर चीज पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होती है, सो हम उसको उसी तरीके से करेंगे डेफिनेटली। एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड के लिए आपका क्या सोल्यूशन लगता है? क्योंकि मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है, जब से मैं उत्तराखंड आया हूँ 2010 से मेरे को किस्मत था या नसीब कह सकते हैं कि उत्तराखंड के मिट्टी पे मैं पैर रखूं, एंड 2-3 जगहों पे मेरा काफी आना जाना था, मगर 2010 से अब 2022 है और मुझे इतना डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, मुझे पहचान में नहीं आ रहा है, चाहे मैं देहरादून का मैंने देखा है या काफी हाईलैंड्स का देखा है, तो इट इज वेरी सैड। आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रहेगा, ताकि जो पलायन हो रही है वो भी रुक जाए और जो है जो प्रॉपर सोल्यूशन हो आपके हिसाब से? इस पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है, बहुत लंबी, पर हम जीवन भर इसी के लिए भी लड़ते भी रहे हैं और रचनात्मक ढंग से करते भी रहे हैं, क्योंकि गांधी के पीछे उसके विचार के अनुरूप चलने वाले केवल संघर्ष करेंगे ऐसा नहीं है, रचना भी करेंगे। तो हम संघर्ष और रचना के कामों को करते रहे, और अब उसको मैं ज्यादा विस्तार नहीं करती, लेकिन मेरा कहना तो ये है कि जितना विकास हुआ है पहाड़ में, वो सारा विनाश है। आप बताइए कितने भूस्खलन हुए हैं, आप बताइए उसका जो सड़कें बनी, उसका जो मलबा है वो गिरा दिया गया ऐसे ही, डंपिंग जोन नहीं, कुछ नहीं, रोकना नहीं उसको, वो सीधे नदी में चला गया, और नदियों में ऐसी बाढ़ आई जो हमने कभी देखी नहीं थी। तो क्या क्या बह गया, लोगों के बने बनाए मकान गिर गए, मंजिलों की मंजिलें नदी में डूब गई। तो ये सब नुकसान हुआ है, ये सब नाश हुआ है, और हम उसको विकास कहते हैं। तो इसलिए, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का भी होता है कि जिसको हमारी सरकारें विकास कह रही है, हमारे गांव के लोग भी, और उसमें जो जानकार जैसे हैं ज्यादा, वो भी उसी को विकास कह रहे हैं। यहाँ के लोगों ने मांग की, यहाँ मोटर रोड है, सब जगह से सब जगह को मोटरें जा रही हैं, और उसकी सड़क बनने में एक बार जो नुकसान हो चुका है, लेकिन अब वो कहती कि रेलवे लाइन बनाओ। रेलवे लाइन बनाएंगे तो सुरंगें इतनी बड़ी बड़ी 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की सुरंगें बन रही हैं, और उसमें ये हिमालय जो बहुत ही संवेदनशील है, वो किस प्रकार से धंस जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी को नहीं है। गांव का आदमी, गांव का नहीं पर मतलब जो थोड़ा अपने को आगे बढ़ा हुआ सोचते हैं, उनकी दृष्टि में भी यही विकास हो गया। वो मांग करते हैं ये करो, ये बनाओ। तो फिर सरकारें तो मेरे ख्याल से, मनुष्य को प्रकृति की विजय करने का अहंकार है। मनुष्य उस अहंकार बहुत, इस मानव के इतिहास को आप देखिए,
जब उन्होंने बड़े बड़े समुद्रों को पार करने के लिए जान झोंक दी, तब से लेके वो प्रकृति को विजय करने की कोशिश करता रहा है। प्रकृति पर जीतना है मुझे। और तो ये जो टेक्नोलॉजी की बात आती है, सरकारों की बात आती है, उनका विकास जो है वो इसी भावना से प्रेरित है। और इसलिए वो कहते हैं हाँ चलो, हमको जनता को खुश करना है, क्योंकि वो हमको वोट दे देगी और हम रोज सत्ता पर बैठे रहेंगे। मतलब इसी की आलोचना गांधी करते थे। कहते थे क्या संसद है, जो बैठ गया ये संसद उसी के उस जो जैसा कहता है वैसा चलती है। तो इसलिए इस तरह से अब रेलवे लाइन बनाने की एक रत्ती आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बन रही है। तो ये सब उत्तराखंड में हो रहा है और सारा विकास के नाम से हो रहा है। ये मैं मानती हूँ कि सबको सन्मति दे भगवान, इनको समझ आनी है, इनको समझ आनी चाहिए। अगर इनको समझ आएगी और ये समझेंगे कि ये हिमालय हमने बर्बाद कर दिया है, तो ये थोड़ा हिचकेंगे, थोड़ा ठीक रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा जो जीवन है वो थोड़ा बेहतर बनेगा। और ये पलायन जो है ये हमारी शिक्षा का कुप्रभाव है। हमारी शिक्षा लोगों को नौकरी, पैसा कमाना, पैसे की हवस, अधिक से अधिक पैसा कैसे मिलेगा, इसी को पैदा करती है। कभी ये नहीं पैदा करती कि इन पहाड़ों में जो छोटी छोटी खेती है वो खेती किस तरह से सरसब्ज हो सकती है, और अच्छा कैसे हो सकता है, और अधिक उत्पादन कैसे हो सकता है, और हम कैसे इसमें खुश रह सकते हैं। हम खुश रह सकते हैं उसमें, जितना उत्पादन हो रहा है उसी से। हमारे पूर्वज सब खुश रहे थे और बड़े मजबूत थे वो। हम तो कुछ है ही नहीं, हम सुविधा भोगी लोग, कुछ है ही नहीं हम में। तो इसलिए ये समझने की बात है। तो आप भी कहो और मैं भी कहूंगी, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। तो यदि और कोई प्रश्न न हो तो इस दीदी आपने जो कुछ कहा, हम उससे ये बात समझे हैं कि गांधी जी का जो रास्ता है वो सतत विकास का रास्ता भी है। और अगर हम सस्टेनेबिलिटी को कायम रखेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। और यदि हमने उपभोग से, कंजम्पशन से, कंज्यूमरिज्म से सब कुछ अभी निपटा दिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा रहे, इसके लिए हमारे पास एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमारे पास होना चाहिए, और गांधी का रास्ता हमें वो सिखाता है। जी हाँ, आपको बहुत धन्यवाद नौटियाल जी, आपको बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है दीदी, और संभव होगा तो आपसे हम भविष्य, निकट भविष्य में चर्चा करते रहेंगे, अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे। और इसी के साथ ये इंडिया ग्रीन्स पार्टी का ग्रीन डायलॉग सीरीज में ये जो श्रृंखला में आज हमने गांधी और सतत विकास पर जो चर्चा रखी थी वो उसका समापन होता है। और दीदी को प्रणाम के साथ नमस्कार। आप सब लोग यहाँ हैं, आपको भी प्रणाम, नमस्कार। हम सबकी तरफ से आपको प्रणाम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत। सब लोग एक बार कैमरा स्विच ऑन करिएगा और दीदी को नमस्ते करेंगे। अच्छा, नमस्ते आपको, नमस्ते। आपका भाषण मैंने ये दोबारा दूसरी मीटिंग है, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही, इसलिए आपको धन्यवाद और प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सुनकर, आप बहुत 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 ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। Take care. Be safe. Okay, thank you so much. Bye. हाँ, थैंक यू, थैंक यू।